हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आई एग्जाम बी। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज में हमने एविडेंस एक्ट स्टार्ट किया था एंड वी डिस्कस्ड फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। आई थिंक अप टू एडमिशन एंड कन्फेशन हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम फर्दर सेक्शंस ऑफ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। So starting with the first question, Evidence Act provides for exception to hearsay rule under. The correct answer here is B, section number 32-33. Section 32 and 33 belong to the area where statement by persons who cannot be called as witnesses. तो उन लोगों की स्टेटमेंट जो विटनेस की तरह बुलाए नहीं जा सकते, उनकी स्टेटमेंट हेयरसे एविडेंस की तरह पेश की जा सकती है। अब हेयरसे एविडेंस होता है सुनी सुनाई बातें। तो कोर्ट कहता है कि सुनी सुनाई बातों को एविडेंस में नहीं लिया जाएगा। अगर ओरल एविडेंस है तो एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए। जिसने कोई क्राइम होते देखा है, the one who has seen, the one who has heard, they should come to the court to give the testimony. ऐसा नहीं होगा कि अगर ए ने कोई क्राइम विटनेस किया है, ए जाकर बी को बता दे, बी सी को बता दे, फिर बी या सी में से कोई आ रहा है टेस्टिमनी देने के लिए। इसको बोलते हैं सुनी सुनाई बातें। Evidence Act does not admit hearsay evidence, but section number 32 and 33 deals with those people जिनको कोर्ट में बुलाया नहीं जा सकता, either because they have died, डाइंग डिक्लेरेशन का आता है सेक्शन नंबर 32 में, या फिर these people have become incapable of giving evidence or they cannot be found, then dying declaration can be made to magistrate, friend, doctor, close relative, any of the above. करेक्ट आंसर इज ई। डाइंग डिक्लेरेशन किसी के भी सामने बोली जा सकती है। अगर उसे मजिस्ट्रेट के सामने बोलेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। हाउएवर डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी मेड टू एनीवन। क्वेश्चन नंबर 3, द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज नॉट रेलेवेंट। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑन अ पॉइंट ऑफ इंडियन लॉ। Opinion of expert as is given under section number 45 of Indian Evidence Act is related to foreign law, science, art, हैंडराइटिंग और फिंगर इम्प्रेशंस। जब भी कोर्ट को कोई ओपिनियन बनाना है अपॉन फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, हैंडराइटिंग और फिंगर इम्प्रेशन, ओपिनियन ऑफ दैट पर्सन हु इज स्किल्ड इन सच थिंग्स आर रिलेवेंट फैक्ट्स। उन लोगों को एक्सपर्ट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, RST never saw A writing, but they give their opinion about the handwriting of A. The opinion of which one is relevant? Of R, because R is a merchant in Delhi and A has written many letters to R. Of S, because S is clerk of A. S's duty was to examine and file A's notes. Of T, because T is X's broker to whom X habitually submitted the letters written by A for advice. All of the above, none of the above. Correct answer here is D, all of the above. इन सभी को हैंड राइटिंग पे ओपिनियन देने के लिए बुलाया जा सकता है। ये आपका सेक्शन नंबर 47 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में बोला है, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट। इसके एक्सप्लेनेशन में क्लियरली दिया है, अ पर्सन इज सेड टू बी एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ अनदर पर्सन व्हेन ही हैज सीन दैट पर्सन राइट, when he has received documents purporting to be written by that person in answer to documents written by himself or under his authority and addressed to that person, or when in the ordinary course of business documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him. ऐसा नहीं होगा कि कभी कभार एक दो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। Habitually he has been getting documents in order to observe them, in order to give opinions or in any course of business. Question number 5, an expert may give an account of experiments performed by him for the purpose of forming his opinion under which section of Indian Evidence Act. तो एक्सपर्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ताकि वो ओपिनियन पे आ सके। This is covered under section number 51. Section 51 talks about grounds of opinion when relevant. जहां पे भी ओपिनियन रेलिवेंट है वहीं पर ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन भी रेलिवेंट हो जाता है। इसके इलस्ट्रेशन में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, according to Indian Evidence Act, which one among the following is irrelevant? The correct answer here is C, evidence of character to prove the imputed conduct in civil cases. So C, evidence of previous good character in criminal cases is relevant. तो previous good character relevant होता है, however previous bad character is relevant only in reply to the evidence of previous good character. अपने आप से कोई bad character का evidence नहीं दे सकता, वो सिर्फ reply में दे सकता है अगर defense good character का लिया हुआ है। सेक्शन नंबर 53 एंड 54 ऑफ एविडेंस एक्ट टॉक अबाउट दिस। सी और डी आपको सिविल मैटर से रिलेट करता है। एविडेंस ऑफ कैरेक्टर टू प्रूव द इम्प्यूटेड कंडक्ट इन सिविल केसेस
और डी भी सेम ही है, एविडेंस ऑफ कैरेक्टर टू प्रूव द इम्प्यूटेड कंडक्ट इन सिविल केसेस एक्सेप्ट व्हेन फैक्ट्स आर अदरवाइज रेलेवेंट। तो इस केस में सेक्शन 52 कंप्लीटली बता रहा है कि सिविल केसेस में वैसे तो इररेलेवेंट होगा except when facts are otherwise relevant. Therefore, the answer here is C, that this is irrelevant. Moving to next question. Question 7. A person is accused for theft. Evidence is sought to be produced to prove that the accused has a bad character and is a suspect of theft on several occasions in the past. Here the correct answer is evidence was inadmissible. एक पर्सन को थेफ्ट के लिए एक्यूज किया गया, एविडेंस ये दिया जाने लगा कि एक्यूज का बैड कैरेक्टर है एंड ही इज अ सस्पेक्ट ऑफ थेफ्ट ऑन सेवरल ओकेशंस इन द पास्ट। तो इस वजह से एविडेंस इनएडमिसिबल है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है प्रीवियस बैड कैरेक्टर का एविडेंस दे ही नहीं सकते एक्सेप्ट इन रिप्लाई। ये आपका सेक्शन नंबर 54 ऑफ एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है। प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई। In criminal proceedings, the fact that the accused person has a bad character is irrelevant unless evidence has been given that he has a good character, in which case it becomes relevant. तो reply के केस में bad character relevant हो जाता है. However, there are two explanations. This section does not apply to cases in which the bad character of any person is itself a fact and issue. तो उन केसेस में जहाँ पे बैड कैरेक्टर ही फैक्ट एंड इशू है, फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस, तो उस पर्सन का बैड कैरेक्टर है, वो अपनी बीवी के मारपीट करता है, तो यहाँ पर ये उसका बैड कैरेक्टर ही फैक्ट एंड इशू हो गया है। इन दैट केस उसका बैड कैरेक्टर के एविडेंस दिया जा सकता है। An explanation 2 says a previous conviction is relevant as evidence of bad character and therefore it can be given. तो अगर प्रीवियस कन्विक्शन है तो वो रेलिवेंट है। हमारे क्वेश्चन में वो प्रीवियसली सस्पेक्ट था, इसीलिए वो रेलिवेंट नहीं हुआ। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दें, क्वेश्चन नंबर 8, सेम क्वेश्चन, द डिफरेंस इज here he is convicted of theft on several occasions in the past. A person is accused for theft. Evidence is sought to be produced to prove that the accused has a bad character and is convicted of theft on several occasions in the past. Therefore, the bad character is relevant. Evidence was admissible. यह आपका आंसर हो गया both A and B. Again, section number 54 of Evidence Act. Moving to question 9. A sues B for trespass on his land. B alleges the existence of a public right of way over the land, which A denies. The existence of a decree in favor of the defendant in a suit by A against C for a trespass on the same land, in which C alleged the existence of same right of way is. अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि B ने A के लैंड पर ट्रेसपास किया और A ने B को सू किया। B बोल रहा है कि A के उस लैंड पे से पब्लिक राइट है जाने का, पब्लिक राइट ऑफ वे इज देयर। अब इस इश्यू से रिलेटेड एक डिक्री ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसमें यही झगड़ा ए और सी के बीच में था और उस वक्त जो डिक्री है वो सी के फेवर में हुई थी, मतलब सी को राइट ऑफ वे मिल गया था। तो यहाँ पर ये जो पुरानी डिक्री है ए और सी के बीच में, ये रेलेवेंट हो जाएगी। इसको कोर्ट देखेगा, समझेगा ऐसा क्यों हुआ, बट इट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द राइट ऑफ वे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सी को हक मिल गया है तो सारी दुनिया को हक है। देयर इज अ पब्लिक राइट ऑफ वे और नॉट, द कोर्ट विल डिसाइड दैट। सो दिस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। द करेक्ट आंसर हियर इज डी। ये आपका सेक्शन नंबर 42 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है, रेलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 41। तो सेक्शन 41 में आपके 4 कैटेगरीज हैं, प्रोपेट, इंसॉल्वेंसी, मैट्रिमनी, एडमिरल्टी। तो इन सब के अलावा कब जजमेंट रेलिवेंट होगी? इफ इट रिलेट टू अ मैटर ऑफ पब्लिक नेचर विच इज रेलिवेंट टू द इंक्वायरी, बट सच जजमेंट, ऑर्डर और डिक्रीज आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ फॉर दैट विच दे स्टेट। क्वेश्चन नंबर 10. A sues B for ₹1,000 and shows entries in his account books showing B to be indebted to him to this amount. तो A कह रहा है कि B को मेरे ₹1,000 देने हैं और वो अपनी बुक एंट्री दिखा देता है कि देखो इसमें लिखा है कि B को मुझे ₹1,000 देने हैं। तो क्या ये एंट्री रेलिवेंट होगी और क्या ये सफिशिएंट एविडेंस है? The correct answer here is yes, this entry is relevant but it is not sufficient evidence. जस्ट बिकॉज उसने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सफिशिएंट एविडेंस है इस बात का कि बी को ₹1,000 देने ही है। ये आपका सेक्शन नंबर 34 ऑफ एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है, एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट व्हेन रेलेवेंट। एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आर रेलेवेंट whenever they refer to a matter into which the court has to inquire, but
Look at here, but such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability. So that's all. अगली बार हम अगली वीडियो में ऑन प्रूफ से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. I hope you are finding these videos useful. Please encourage us because we are thinking of stopping this series. अगर आपको इस सीरीज से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स. आप अपनी क्वेरीज को भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस ऑन दिस नंबर फॉर एनी guidance or direction. Our Exambee helps you prepare 50% faster with a crisp and concise content. There is a lot of information overload in the market. आपको कहीं से भी बहुत कुछ पढ़ने को मिल सकता है, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है टू क्लियर एनी एग्जाम्स. So at our Exambee, we tend to provide you crisp and concise content so that we can cut this clutter and give you the best possible content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.